آج رات آپ کی برکت کی رات ہے، اور آج رات آپ اس جگہ سے سیو نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک زندگی اس جگہ سے نئی برکت اور نیا زور پا کر جائے گی۔ اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پادری صاحب آج لیٹ آئے ہیں۔ میں اس لیے لیٹ آیا ہوں کہ جب بھی ہم عبادت پہ جاتے ہیں تو میں جب کہتا ہوں سمینا سے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گا، تو سمینا کہتی ہے نہیں آپ کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے، اکٹھے ہم جائیں گے۔ تو آج میں نے یہ کہا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو خدا نے مجھے گھر میں روکا اور خدا نے کہا میں آج تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سے کچھ بات لے کر جا اور میرے لوگوں کے ساتھ وہ بات کرنی ہے۔ اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ کون سی خدا نے بات کرنی ہے۔ پھر خدا نے مجھے کہا کہ کبھی آپ نے کوئی گاڑی رینٹ پر لی ہے؟ تو میں خدا سے کہتا ہوں ہاں خداوند، ایک دو دفعہ گاڑی رینٹ پر لی ہے، کہیں گئے تھے اور گاڑی کو لے کر گئے تھے۔ تو خداوند نے پھر کہا کہ جب اس گاڑی کو استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر میں کہتا ہوں خداوند جب استعمال کی گئی اس کے بعد شو روم پر جا کر اس کو کھڑا کیا اور جتنے پیسے تھے ان کو دے دیے۔ تو خداوند نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتا کہ جو اس عبادت کے لیے چاہے تھوڑا کام کر رہے ہیں چاہے زیادہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو آنے والے دنوں میں بہت برکت دوں گا، کیونکہ ان کا بدن میرے جلال کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو جب کسی کا بدن میرے جلال کے لیے کام کرتا ہے تو میں اس کو خالی نہیں رہنے دیتا، بلکہ میں اس کو برکتوں سے بھر دیتا ہوں۔ کسی کو روپیوں کی صورت میں برکت دوں گا، کسی کو روحانی نعمتوں اور پھلوں سے بھروں گا، کسی کو جاب پر ترقی دوں گا، اور کسی کو جاب پر سیلری میں اضافہ کروں گا۔ کسی نہ کسی طرح سے میں ان کو بلیس کروں گا جو اس عبادات کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بدن میرے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ مجھے وقت دیتے ہیں تاکہ ان کا بدن، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بدن کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے کام کے لیے، صبح نکلتے ہیں اور شام تک وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو میرے کام کے لیے اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں میں ان کو بلیس کروں گا، میں ان کو برکت دوں گا۔ اور میں ان زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان عبادات کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں اور بدن کا استعمال کر رہے ہیں وہ خوشی منائیں، آنے والے دنوں میں خدا ان کو بہت بلیس کرنے والا ہے، آنے والے دنوں میں خدا ان کو بہت برکت دینے والا ہے۔ پھر خدا نے ایک اور بات میرے ساتھ کی کہ میں آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو کھولوں گا، کیونکہ ابلیس ذہنوں کو بند کرتا ہے تاکہ وہ بہتر طور سے سوچ نہ سکے، وہ بہتر طور سے کچھ کر نہ سکے، لیکن آج رات میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو کھولوں گا تاکہ وہ میری قدرت اور میرے جلال کو دیکھ سکیں اور یاد رکھیں کہ جب بھائی نوید اس جگہ پر پرستش کر رہے تھے تو خدا کا روح اس جگہ پر کثرت سے کام کر رہا تھا، اور اس وقت بھی خدا کا روح اس جگہ پر کام کر رہا ہے، اور آج رات آپ اس جگہ سے خالی نہیں جائیں گے اور برکتوں سے بھر کر جائیں گے۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے بیٹھے بیٹھے ہی اور خدا کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور کہیں گے تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، آج تو مجھے برکت دینے کو ہے، آج تو مجھے نیا زور دینے کو ہے، سارے پہاڑ ہٹنے کو ہیں، ہر ایک چیز ترتیب میں آنے کو ہے۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، آج تو جوڑنے والا ہے، بکھرے ہوا کو وہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ اس لیے خوشی منائیں، شادمان ہوں کہ خدا کا روح آپ کے درمیان میں کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ کہیں خداوند میں جو تیرا کلام سنوں 100 گنا پھل لے کر آؤں۔ خداوند جو تیرا کلام سنوں 100 گنا پھل لے کر آؤں، اور اس کلام کو ابلیس نہ چرانے پائے،
اس کلام کو ابلیس نہ چرانے پائے، بلکہ یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم بہت برکت لینا چاہتے ہیں۔ آج خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں زور دے، ہمیں قوت دے، تاکہ ہم تجھ میں بڑھ سکیں۔ جو کمزوریاں آگے نہیں بڑھنے دیتی، آج تیرے کلام کی قدرت سے وہ ختم ہو جائیں، تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام کو کھولیں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ کھولیں۔ متی رسول کی معرفت لکھوائی کی انجیل اور اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک خدا کے کلام کی ہم تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھوائی کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہر ایک یہ کہے خدا سچ بولتا ہے، ایک دوسرے سے کہیں خدا سچ بولتا ہے، خدا سچ بولتا ہے، اور آج خدا میرے ساتھ بولے گا اور میں برکت پاؤں گی، میں برکت پاؤں گا۔ یہ جو خدا کے کلام کا حصہ آج اس جگہ پر تلاوت کیا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ نامی عورت ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اس کی بیٹی کو بدرو ستاتی ہے، اور وہ بہن سرحدوں کو پار کر کے یسوع مسیح کے پاس آتی ہے۔ قربانی کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ایک دوسرے سے کہیں، قربانی کے بغیر چھٹکارا نہیں، قربانی کے بغیر رہائی نہیں، قربانی کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور یہ بہن جس کی بیٹی میں بدرو تھی، اور یہ چلاتی ہے اور کہتی ہے، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ وہ بہن اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، بہت دکھی تھی، اور چلاتی ہے، یسوع مسیح کے پیچھے جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح اس کی بات کا کچھ جواب نہیں دیتے۔ لیکن اس نے چلانا بند نہیں کیا، وہ پھر بھی چلاتی ہے، اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی کو بدرو ستاتی ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں، میں اس کی وجہ سے دکھی ہوں، وہ بڑی زخمی ہے، وہ لاچار ہے، وہ صحیح طور سے کام نہیں کر سکتی، وہ صحیح طور سے چل نہیں سکتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ یسوع تو کہہ دے گا تو میری بیٹی شفا پا جائے گی۔ لیکن یسوع اس کو کچھ جواب نہیں دے رہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس نے چلانا بند نہیں کیا۔ آج ہم 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن
खुदावन की हजूरी में आते हैं और जब हमें जवाब नहीं मिलता हम उसकी हजूरी में जाना बंद कर देते हैं। और इस बहन की जिंदगी से हम ये देखते हैं और ये हमारे लिए सीखने की बात है कि ये बहन हिम्मत हारने वाली नहीं है, ये हिम्मत नहीं हार रही। और याद रखें कि कुर्बानी के बगैर छुटकारा नहीं, कुर्बानी के बगैर रिहाई नहीं। बड़ी दुखी है, खौफ भी है इसके अंदर, सहमी हुई है, गैर कौम से है और ये सोचती है कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, वो कहेंगे कि ये कहां पर चली गई है, ये किसके पास चली गई है, ये यीशु के पास चली गई है। और आज भी मसीही लोगों के पास आने से लोग डरते हैं और सहमे हुए हैं। और याद रखें कि हर प्रॉब्लम का हल मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं है। अगर हम किसी और जगह पर जाते रहेंगे ना तो हमारे प्रॉब्लम का हमें हल मिलेगा, ना मुश्किलात का हल मिलेगा, ना हमारे तूफान थम जाएंगे, ना हमारी आंधियां रुकेंगी। और जब हम यीशु के पास आएंगे हर एक चीज बदल जाएगी, क्योंकि यीशु के बगैर हालात नहीं बदल सकते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के शागिर्द गरासीनियों के इलाका की तरफ जा रहे थे, तो जब वो झील में सफर कर रहे थे तो झील में बहुत बड़ा तूफान आता है। वहां पर कश्ती में पानी आना शुरू हो गया है। शागिर्द अब बचने के लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बांस दुरुस्त कर रहा है, कोई रस्से दुरुस्त कर रहा है ताकि हम किसी ना किसी तरह से बच जाएं। वो तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तूफान रोकना उनके पास की नहीं थी। यीशु भी कश्ती में है लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन शागिर्द बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एकदम उनको याद आता है कि यीशु भी हमारे साथ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुकारते हैं ऐ यीशु, ऐ उस्ताद हमें बचा, हम मरे जाते हैं, तुझे हमारी फिक्र ही नहीं है। लेकिन यीशु से उठते हैं तो कहते हैं ऐ तूफान थम जा, तो तूफान थम जाता है। अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, आपके तूफान नहीं रुक रहे, आपकी आंधियां नहीं रुक रही, आप बीमारियों में हैं, मुश्किलात में हैं, बदरूहों ने घेरा है, वो जान नहीं छोड़ रही, एक हाल है, यीशु को पुकारेंगे हालात बदल जाएंगे। यीशु को पुकारेंगे सब कुछ तरतीब में आ जाएगा। अगर खानदानों में बेतरतीबी आ चुकी है, अगर खानदान नहीं सुनते, औलाद नाफरमान हो चुकी है, यीशु को पुकारेंगे सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, खुदा फरमाता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा जिसको तू नहीं जानता। आज गहरी बातें आप सुनने वाले हैं। और जब यीशु मसीह उठा तो यीशु ने कहा है तूफान थम जा, तो तूफान थम गया। तो ये बहन भी पुकार रही है ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आज आप निजात पाने वाले हैं अपनी बीमारियों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी परेशानियों से, अपनी तंगहालियों से, गुर्बत से, हर तरह की लानत से, क्योंकि आप यीशु नाम पुकार रहे हैं। और बाइबल में लिखा है जो खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदा सच बोलता है, एक दूसरे से कहे खुदा सच बोलता है, क्योंकि उसने फरमाया है जो मेरा नाम लेगा वो निजात पाएगा। और उसने सच फरमाया है, आज वो सच्चाई आप पर ज़ाहिर होने वाली है। और ये बहन पुकार रही है ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, लेकिन यीशु उसको कुछ जवाब नहीं दे रहे। फिर शागिर्द यीशु मसीह के पास जाते हैं और शागिर्द यीशु को जाकर कहते हैं कि उस्ताद जी ये बहन बहुत देर से आपके पीछे चला रही है, आपको आवाजें दे रही है, आपको पुकार रही है, आपको कह रही है कि मेरी बेटी में बदरू है, वो बहुत दुखी है, वो चला रही है, वो रो रही है, उसको जवाब दे ताकि उसकी बेटी शिफा पा जाए।
लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो बहन क्या करती है, बहन कहती है और यीशु मसीह को सिजदा करती है और जाकर कहती है, ऐ यीशु मेरी मदद कर, ऐ यीशु मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं हूँ। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो बदरूहें मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी। आज रात आप पुकारेंगे तो यीशु आपकी मदद करेगा। आप यहाँ से बेफल नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से आप फल लेकर जाएंगे, क्योंकि यीशु यहाँ पर उतरा है और वो आपको बरकत देगा। आप नया जोर पाएंगे, नई ताजगी पाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। आप पुकारेंगे तो फिर ऐसा होगा। उस बहन ने सिजदा किया है और सिजदे से क्या मुराद है, वो यीशु की प्रस्तुत कर रही है। और वो बीमारी से पहले प्रस्तुत कर रही है या बीमारी के बाद में प्रस्तुत कर रही है? कब प्रस्तुत कर रही है? हाँ जी, बीमारी से पहले प्रस्तुत कर रही है। तो हम बीमारी से पहले प्रस्तुत नहीं करते और बाद में भी प्रस्तुत नहीं करते। जब मौजज़ात हो जाते हैं तो हम चर्च को छोड़ देते हैं। जब मौजज़ात हो जाते हैं हम खुदावन के पास नहीं आते। लेकिन इस बहन की बेटी से बदरू नहीं गई, लेकिन फिर भी प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि ये जान गई है कि प्रस्तुत से बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। और जब पौलुस और सिलास जेल में जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे तो उनकी क्या हालत थी? जख्मी थे, खून बह रहा था, काट में उनके पांव ठोके गए, लेकिन फिर भी वो जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे। और जिनको प्रस्तुत के मुकाशफे की समझ आ जाती है, फिर वो कभी भी डामाडोल नहीं होता, वो कभी भी मायूस नहीं होता। जिसको प्रस्तुत की समझ आ जाती है कि प्रस्तुत से क्या कुछ हो सकता है। और आपने जिंदा खुदा की प्रस्तुत की है, आपके जुए खुल गए हैं और बंधन टूट गए हैं, क्योंकि खुदा सच बोलता है। जब पौलुस और सिलास जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे तो आसमान से फेवर उनके लिए आई। और याद रखें कि जब हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं आसमान से हेल्पर हमारे लिए आते हैं। हालेलुया। और जब वो जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रहे थे आसमान से फरिश्ता आया, बंद दरवाजे खुल गए जिनको कोई नहीं खोल सकता था। जब आसमान से मदद आती है तो फिर बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब यीशु मसीह कब्र में थे तो उस पत्थर को कोई नहीं हटा सकता था, कोई नहीं लुढ़का सकता था, क्योंकि उस पर रोमी मोहर लगी थी और रोमी मोहर को तो कोई नहीं तोड़ सकता था। अगर कोई तोड़ता था तो उसके लिए एक ही था कि उसको कत्ल किया जाता था। और रोमी मोहर को कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन याद रखें कि आसमान से फरिश्ता आया तो उसने पत्थर को हटा दिया। जो आप समझते हैं कि ये काम मुश्किल है, आज वो आसान होकर जाएगा। आप यहाँ से तसल्ली पाकर जाएंगे, आप यहाँ से आजाद होकर जाएंगे, आपके ज़हन आजाद हो जाएंगे, आप मुकम्मल तौर पर यहाँ से आजाद होकर जाएंगे, आपके बदन रिहाई पाएंगे, आप यहाँ से बीमारियों से छूट कर जाएंगे, आपके सारे हालात बदलने वाले हैं। खानदानी हालात बदल जाएंगे, कलीसियाई हालात बदल जाएंगे और शख्सी रवैये आपके बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो आया है जिसकी कब्र खाली है। और उसने फरमाया है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो सच बोलता है, इसीलिए उसने कहा है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको वो खोल देता है फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता। फिर वो फरिश्ते ने जब पत्थर को हटाया है तो वो कहां पर बैठ गया है? पत्थर पर बैठ गया है। जहां पर रोमी मोहर लगी थी वो रोमी मोहर पर बैठ गया है। और फरिश्ता कहता है कि आए कोई मुझे इस पत्थर से उठाए, लेकिन कोई भी उसको उठा ना सका, क्योंकि जहां वहां पर फौजी बैठे हुए थे कि कोई यीशु को उठाकर ना ले जाए। लेकिन जब फरिश्ता आया है वो भी बेहोश हो गए हैं। जब खुदा की तरफ से मदद आती है तो बड़े बड़े सूर में छोड़कर भाग जाते हैं। और आज यहाँ से इब्लीस भी भाग रहा है। हालेलुया।
और वो यहाँ पर नहीं ठहर सकता, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम लिया जाता है जिसके पास आसमान और जमीन का इख्तियार है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु को पुकारते हैं तो हालात बदल जाते हैं। जब पौलुस और सीलास यीशु को पुकार रहे थे, उसकी प्रस्तुत कर रहे थे, आधी रात का वक्त था और आधी रात के वक्त कोई वहां नहीं जा सकता था, लेकिन याद रखें कि जहां कोई नहीं जा सकता वहां पर मेरा यीशु जा सकता है। अगर किसी तूफान में कोई नहीं जा सकता, वहां मेरा यीशु जा सकता है। अगर हम बीमारी से शिफा नहीं पा सकते, मेरा यीशु बीमारियों से शिफा दे सकता है। अगर हम बदरूहों के कब्जा में हैं, यीशु बदरूहों से भी हमें आजाद कर सकता है, लेकिन हमें उसकी प्रस्तुत करनी है। ये बहन की बेटी में बदरूह है, लेकिन ये जिंदा खुदा की प्रस्तुत कर रही है और इसने सिजदा किया है। यीशु मसीह के पांव को पकड़ लिया है कि ऐ यीशु मेरी मदद कर। इससे क्या मुराद है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी जब तक तू मेरी बेटी को ठीक नहीं करेगा। मैं उस वक्त तक तेरे पांव को नहीं छोड़ूंगी, मैं सजदे से नहीं उठूंगी जब तक तू मेरी बेटी को ठीक नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको जवाब दिया है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। और ये कितने सख्त अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने उसके लिए कहे, लेकिन उसने बुरा नहीं मनाया। वो फिर भी वहीं पर रही है। आपको ना जवाब मिले, आप दुआ करते रहें। आपको ना जवाब मिले, खुदा का कलाम पढ़ते रहें। आप खुदा का कलाम पढ़ते रहेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे। ना भी जवाब मिले, ना खुदा बात करे, लेकिन खुदा आपको अच्छी सिमत पर लेकर जाएगा। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं वो बुलंदियों को छूते हैं। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं वो ऊंचाई पर जाते हैं। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं वो आगे काम करते हैं। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं खुदा उनको पीछे नहीं रहने देता। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं खुदा उनकी इज्जत करवाता है। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं उनकी अपनी पहचान होती है। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं खुदा उनकी इज्जत करवाता है। हालेलुया। अगर हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, जहां जाएंगे हमें इज्जत मिलेगी। अगर हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, जहां जाएंगे हम आगे बैठेंगे, क्योंकि खुदा इज्जत देता है। खुदा अपने लोगों को पीछे नहीं रहने देता, बल्कि उनको आगे लेकर जाता है। और गौर के साथ सुने कि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, महसूल लेने वाले थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनको कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के कलाम को सुना, यीशु के साथ चलना शुरू किया, यीशु के साथ रहना शुरू किया, तो यीशु ने उनको रसूल बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है। ऊंची हम बोलेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। तो मेरे अजीजों, इस बहन ने यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह के कदमों को ये पकड़ी रही और कहती रही कि ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। लेकिन यीशु कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, आज आप बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उस औरत के साथ ये बात की, तो वो औरत कहती है, हाँ खुदावंद, मैं इस बात को जानती हूँ कि जो कुत्ते हैं वो भी जब अपना पेट भरते हैं तो जो मालकों के मेज से टुकड़े गिरते हैं तो उसी से पेट भरते हैं। उसने कोई बुरा नहीं मनाया। और याद रखें, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आपको कोई कुछ भी कहता है, बुरा ना मनाएं, खुदा आपको जवाब देगा। और मैं कई दफा ये बता चुका हूं, अगर आपको कोई बुरा कहता है, आपको कोई कुछ भी कहता है, अगर आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या उसके साथ कोई बात करेंगे, फिर खुदा आपकी जगह पर नहीं आएगा। अगर आप चुपचाप चले जाएंगे, फिर खुदा आपकी जगह पर आएगा और वो जंग करेगा। हम खुद जंग करने की कोशिश करते हैं, हम खुद बदला लेने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हम बेबरकत रह जाते हैं। आपको कोई कुछ भी कहता है, उसको छोड़ दे, ये खुदा का और उसका मामला है, लेकिन खुदा आपको दिखाएगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। और जब इस बहन को ये बात कही गई है, लेकिन इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगर ये आज जैसे हम हैं ऐसी होती तो ये क्या करती? ये यीशु मसीह को छोड़कर
चली जाती कि आज यीशु मसीह ने मुझे क्या कह दिया है, यीशु मसीह ने मुझे ये कह दिया है, तो मैं तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये बहन फिर भी वहां पर रही है। और एक बात और भी थी कि इसको जरूरत थी। तो हमारी जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं हम कहाँ चले जाते हैं, हम नजर भी नहीं आते। लेकिन जब हमारी जरूरत पूरी नहीं होती हम यीशु के पास रहते हैं। लेकिन जब जरूरत पूरी हो जाती है हम यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। फिर यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा, तू चली जा और तेरी बेटी शिफा पा गई है। और जब वो चली जाती है और अपने घर में जाती है तो जाकर देखती है तो उसकी बेटी शिफा पा जाती है। ये कितना बड़ा मौजज़ा है। क्या आज हम शिफा पाना चाहते हैं? क्या आज हम खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं? क्या आज हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे? क्या आज हम चाहते हैं खुदा हमारे घरानों में काम करे? क्या आज आप चाहते हैं कि हमारे घराने जो तब्दील हो गए हैं वो दोबारा फिर खुदा की राह पर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर बेवफा हैं वो वफादार हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे, हमारे खानदानों में काम करे? आज आपकी जिंदगी में काम होगा। लेकिन जो कुछ मैं कहूँगा याद रखें, अगर आप उसको करेंगे तो फिर आप यहाँ से सेम नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं खड़ा और ना मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। खुदा का रूह मुझे ताकत दे रहा है और वो मुझे मेरे अंदर से होकर बोल रहा है। और जब खुदा का रूह आता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। जब खुदा का रूह आता है तो पहाड़ हट जाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना जोर से और ना तवानाई से, बल्कि खुदा फरमाता है मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। और बीमारी का पहाड़ भी हो सकता है, कमजोरी का पहाड़ भी हो सकता है, गुर्बत का पहाड़ हो सकता है, लानत का पहाड़ हो सकता है, मुखालफत का पहाड़ हो सकता है, अदर कोई और भी पहाड़ हो सकता है। लेकिन आज आपके पहाड़ हटने को है। लेकिन करना क्या है? पुकारना है उसको। ये बहन क्या कर रही थी? पुकार रही थी, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरूह मेरी बेटी को सुताती है और यरहों की राह पर जो अंधा बैठा था वो भी कह रहा था ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मैं अंधा हूँ, मुझे बेनाई दे। तो उसको बेनाई मिली या ना मिली? और आज हमारे हालात भी बदलेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा सच बोलता। एक दूसरे से कहें खुदा सच बोलता है। और ये भी कहें आज आप बरकत पाने वाले हैं, आज आप शिफा पाने वाले हैं, आज आपकी जिंदगी में मोर्चा होने वाला है। आप यहाँ से बदल कर जाएंगे। हालेलुया। और आप अपने आप से कहें आज मुझे शिफा मिलेगी, मेरी जिंदगी में मोर्चा होगा, मेरे हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। जिन बातों की वजह से मैं परेशान थी आज वो बातें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया।